Salutation to the God. God means 100% truth. Oral means 100% false. Oral means 100% false because it has come from ignorance of the God. Oral is 100% false because it has come from the result of the ignorance of the God. So God is 100% truth. According to this, we all are God. God we are. According this philosophy, this philosophy from Vedanta philosophy. Vedanta means Vedanta word, Sanskrit word, conclusion of Vedas. Vedas also Sanskrit word. According the conclusion of Vedas, that is Vedanta, Vedanta philosophy is the supreme philosophy of the world. According Vedanta philosophy, 100% truth is only God. God means pure intelligence. God means which is immortal, where is no death and the rotation of death and birth. World is 100% false. World is the name of the game uh, rotation of death and birth. Game of the world. That is a rotation of death and birth. Death and birth. A little happiness, a lot of troubles. That is meaning of the world. The meaning of the world, exactly the meaning of the world, a little happiness, but a lot of troubles, tensions, afraidness, in the rotation of death and birth. Childhood, younghood, after that, adulthood. All should face adult if anyone birth in this world. And one day should die. The death, that is the signal of uh, huge troubles, maximum troubles, the feeling of maximum troubles at the time of death, which all men should face earlier or later. So, uh, the false, the position of the world always false, and the position of the God always truth, always happiness, always full of pleasure, full of enlightenment, and full of pure consciousness. The name of the God is the name of inner consciousness, which always remains. So, according this, we are immortal according God. According
internal inner consciousness. So we should uh, we should have realizing always the feeling of God, not feeling of the world, but the work, but the task, ours, what we had done yesterday, the day before yesterday, that happens tomorrow and the day after tomorrow also. Because there is a culture which has been made already. According culture that goes, we have no take any worry about that. Whatever we had done yesterday and the day before yesterday, the same we shall do tomorrow and the day after tomorrow also, according the direction of the culture, past culture. But now we should convert the culture of the God. Now we should convert our culture for the culture of the God, which is always truth. Today means 2024, November 13, today Wednesday. This presenting by President of Immortal Legends Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city, now broadcasting through radio FM from Nepal Bhairava, Parasi, Palpatansen, and Butol, expressing, presenting of only 15 minutes. Now I describe this in Indian language and Nepali language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, संसार का पोजीशन झूठा है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा है। यद्यपि दिखाई देता है, अनुभव होता है, लेकिन स्वप्न के तरह स्वप्न का अनुभव भले उस टाइम में सत्य भान हो जाता है, लेकिन स्वप्न से जब हम लोग जागते हैं तो एक भी नहीं ठहरता है। इसलिए स्वप्न का अनुभव झूठा है। वैसा ही जागृत संसार का जो अनुभव है वो भी ठीक स्वप्न की तरह झूठा है। एक कहना है सर्वोच्च दर्शन जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषद दर्शन, बृहदारण्यक उपनिषद आदि का कहना है और सच भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए संसार का जो खेती है वो झूठा खेती है। परमात्मा का अनुभव करके रहना है असल खेती। इसलिए परमात्मा की तरह हम लोग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का अर्थात संसार का हम जो भी है, जहां भी हैं, जैसे भी रहे हैं, हम लोगों का वास्तव स्वरूप परमात्मा ही है जो हरदम रहेगा। जहां मौत जन्म का चक्कर नहीं है, मौत जन्म का चक्कर है संसार का खिलौना, संसार का स्वभाव, मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, कभी बचपन, कभी युवा, कभी वृद्ध, कभी मौत में। मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो, यह है संसार का स्वभाव जो झूठा है। सत्य है परमात्मा का स्वभाव जो हम लोगों का असली स्वभाव है, जहां आनंद ही आनंद है और केवल वहां स्वयं प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है और शुद्ध अनुभव का अनुभव है।
जो अमर है, परिपूर्ण है, वहां मौत जन्म का खेल नहीं है। मौत जन्म का खेल तो, धोखाधड़ी का खेल तो संसार में होता है, जो मिथ्या है, झूठा है, 100% झूठा है। संसार का खेल 100% झूठा है। परमात्मा का अनुभव 100% सत्य है, जो हम लोगों का, संसार का सब हम लोगों का असली स्वरूप परमात्मा है। ये है चेतन को लेकर परमात्मा को हम लोग समझ सकेंगे। चेतन वस्तु को लेके, आत्मा को लेके, परमात्मा को लेके, जो हरदम रहा है, हरदम सुख है, हरदम अपना ज्योति है और अपना स्थिति अमर रूप से हरदम है। इसलिए परमात्मा की तरह रहें, क्योंकि 100% सत्य है। संसार का पोजीशन 100% झूठा है। इसलिए झूठा के तरफ समय न बिताएं, सत्य के तरफ समय बिताएं। हम लोगों का जो कामकाज है, जो कल परसों हुआ था वैसे ही कल परसों भी होगा। काहे कि संस्कार बन चुका है, वही संस्कार ने हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है जब तक आयु अवधि रहेगा। इसलिए हम लोगों का काम, कर्तव्य ये है कि परमात्मा का संस्कार बनाएं। अपने ही बनाने से होगा, अपने बनाए बिना नहीं होगा। जैसा खाना अपने से ही खाने से खाया जाता है, दूसरे ने खाकर अपना पेट नहीं भरता है, अपने ही खाना पड़ता है। वैसा ही परमात्मा का संस्कार भी अपने ही बनाना पड़ता है। ये है आज का मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष। आज है द्वादशी, आज है बुधवार। एक कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से, केवल 15 मिनट का कार्यक्रम ये जो प्रसारित है नेपाल भैरवा से, बंदे एफएम से, परासी से, अल्बा तानसेन से, पुटोल से। अभी का जो समय है वो है परमात्मा का संस्कार बनाते रहे, नहीं तो मौत के समय काम नहीं देगा। अभी बनाएंगे तभी शरीर का मौत में काम दे देगा, इसलिए अभी ही बनाना होगा। ये सब बात आ रहा है सर्वोच्च उपनिषद, सर्वोच्च जो दर्शन है संसार का, वेदांत दर्शन, ये अनुसार हम कह रहे हैं। यही बात नेपाली भाषा में भी हम बोलेंगे। अभिवादन सबैलाई, सबै भनेको परमात्मा, किनकि परमात्मा नै सबै रूपले रहिरहनु भएको छ। सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा मात्रै हो। परमात्मा मात्रै 100% साँचो हो, संसार 100% झुटा हो। जहाँ मृत्यु र जन्मको चक्कर चलिरहेको छ त्यसको नाम संसार हो। जहाँ बच्चा, युवा, वृद्ध मौत मरणको चक्र खेलिरहेको छ त्यसको नाम संसार हो। जहाँ थोरै सुख छ, धेरै दुःख छ, धेरै चिन्ता छ, धेरै कठिनताहरू छन्, धेरै भय डरहरू छन्, त्यसको नाम संसार हो। जहाँ आनन्द आनन्द छ, जहाँ आफ्नै प्रकाशले स्वतः जाजुल्यमान भएर रहिरहेको छ, जहाँ कुनै पनि टेन्सन छैन, जहाँ कुनै पनि दुःख छैन, जहाँ कुनै आपद विपद छैन, जहाँ कुनै मृत्यु जन्मको चक्कर छैन, त्यसको नाम हो परमात्मा, जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। यो शुद्ध चैतन्यलाई लिएर हुन्छ, आत्मालाई लिएर हुन्छ, जो अमर हो, परिपूर्ण हो। त्यसकारणले आजका दिनमा अर्थात् विक्रम सम्वत 2081 साल कार्तिकको 28 गते बुधबार हामीले वर्तमानमै, तत्कालमै
परमात्मा मात्रको संस्कार बनाइरहनुपर्छ। तर हामीले आफ्नो कामकाजको लागि कुनै चिन्ता पिरिनु पर्दैन, किनकि हिजो अस्ति जो कामकाज थियो त्यो भोलि पछि पनि हुन्छ, किनकि संस्कार बनिसकेको छ। आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म त्यसमा घटिबढी हुँदैन। हाम्रो काम कर्तव्य हो परमात्माको संस्कार अत्यन्त दृढ रूपले बनाइराख्नु, जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ मृत्यु र जन्मको खेल छैन, जहाँ चिन्ता दुःख डरको खेल छैन, जहाँ केवल आनन्दै आनन्द मात्र छ। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ, यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।